آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایگزیکٹ ٹائم 2:25 لاہور دھرنے کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے. تمام ملازمین کی جرت ثابت قدمی کو سلام جو اس وقت بھی دھرنے میں موجود ہیں، اور ان بہنوں کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جو آج دن کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہاں پہ تشریف لے کے آئے. مگر یہ ایک بڑا سوال ہے 10 لاکھ پنجاب کے ملازمین کے لیے بھی کہ اگر اس میں سے 10% بھی ملازم، یہ ان کا اپنا ذاتی ایشو ہے. ہر ملازم کا ذاتی ہے جس کو ریٹائرمنٹ کے اوپر 2-4 لاکھ گریڈ 1 سے لے کے 15 سے 20 لاکھ کا جو ہے وہ نقصان جو ہے برداشت کرنا پڑے گا. اور اس نے الٹیمیٹلی جس طرح سے دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اس نے وفاق میں بھی آنا ہے، اور وفاق میں جو پینشن اصلاحات آ رہی ہے اس نے صوبوں کے اندر بھی آنا ہے. تو لاہور کے خاص طور پہ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ ہر صورت میں کل اپنی شرکت کو یہاں پہ دھرنے کے اندر یقینی بنائیں. یہ قائدین کی اور انتظامیہ کے درمیان اس وقت نفسیات کی جنگ چل رہی ہے. آج کسی بھی اعلیٰ حکام نے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا اور اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہے. ملازم اپنے قائدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جو گزشتہ 2 مہینے سے ایک کمپین چلا رہے تھے، اس کے حوالے سے بھی. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میسیج کو شیئر بھی کریں. آج دوسرے دن کے اندر یہ دھرنا شامل ہو گیا. ابھی میں دھرنے کے آپ کے ساتھی بھی دکھاتا ہوں. اس وقت فیڈرل کے جو میرے ساتھ موجود ہیں، ساجد بھائی شاہانی لاہور ایپکا کے ہمارے ساتھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، منصور صاحب، حسن تمار زیدی صاحب سینئر رہنما ایپکا کے، اور یہ دیکھیں دھرنے میں ہمارے ساتھی جو اس وقت ادھر موجود ہیں. میرے سمیت ان تمام ملازمین کے ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، اور بچے بیوی بچے بھی ہیں. یہ ان بچوں کے جو ہے فیوچر کے لیے جو جمع پونجی جو ہے ریٹائرمنٹ. السلام علیکم. سو جائیں. یہ اس کے تحفظ کے لیے آئے ہیں کہ ایک ملازم کو ہوتا ہے کہ اس نے ریٹائر ہونا ہے، کسی بچے کی یونیورسٹی کی فیس دینی ہے، کوئی جہیز اکٹھا کرنا ہے، کوئی 2 کمرے بنانے ہیں. یہ دیکھیں یہ ساتھی، یہ سرکاری ملازمین ہیں کس حال کے اندر یہاں پہ موجود ہیں. اور جتنے بھی ساتھی اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ لازمی طور پہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ سامنے اسٹیج، ان سب کے میرے سمیت جو ہے وہ بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے. مگر یہ ان بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نکلے ہیں، اور یہ ناکامی ان کی ہوتی ہے تو ان کی تو ہے ہی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ساتھی جاگ بھی رہے. یہ ناکامی اگر ہوتی ہے تو ان کی تو ہے ہی ہے جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. یہ تمام ملازمین کی بھی ناکامی ہوگی. قائدین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. صوبائی صدر ایپکا ہمارے شفقت رسول صاحب، فیض صاحب میں حاضری لا رہے ہیں. بالکل فیض صاحب ہیں، چیئرمین صاحب ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری حاضری نہ لگائیں. بشیر وڑائچ صاحب تھک گئے، ابھی ہم کھانا کھا کے آئے ہیں. بلوچ صاحب شک میں ہے یہاں پہ بہت سے لوگ کہ لائیو جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، کیونکہ 2 دفعہ میں دھوکہ دے چکا ہوں. یہ ساتھی پولیس بھی ڈیوٹی کے اوپر موجود ہے. وعدے کے مطابق یہاں سے پنڈال کو
واش روم جانے کے لیے یا کھانا جانے کے لیے تو چھوڑیں گے، ہر صورت میں ادھر یہاں پہ مجھے موجود رہنا بحیثیت چیف کوآرڈینیٹر اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ۔ سارے ساتھی ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ کچھ ساتھی ہمارے جاگ بھی رہے ہیں۔ کہاں سے ہیں؟ گجر خان۔ کون سی یونین ہے آپ کی؟ پنجاب ٹیچر یونین۔ پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن اور پنجاب ٹیچر یونین مکس ہے جی، وہ ہم ایک ہی ہیں جی، بیچ میں سے سارے بس سمجھ لیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ ٹیچر یونین سرائے عالمگیر سے۔ یہ تاریں یہاں پہ نہیں تھی، ابھی پولیس نے سیکورٹی وغیرہ جو دے دی صبح سے نہیں تھی۔ یہ ہمارے ساتھی ادھر، یہ اینڈ ہے پنڈال، وہ دور سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ جو تھکے ہوئے ہیں خراٹے بھی لے رہے ہیں۔ ان تمام کے بچے ہیں اور وہ بچے اپنے والدین کو بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ ان بچوں کا میرے سمیت ٹائم کاٹ کے، اور ان بچوں کے لیے میں اپنے بچوں کے لیے بھی موجود ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے بچوں کی باری بعد میں ہے، سب سے پہلے میرے بچوں کی باری ہے۔ مگر آپ کے گھروں میں بیٹھنے سے ہو سکتا ہے کہ میرے بچوں کا بھی حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہو، اور جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کے بچوں کا حق بھی مارا جائے۔ یہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں سے ہیں؟ میاں چنو خانے وال۔ کون سی یونین آپ کی؟ ٹیچرز، ہمارے پنجاب ٹیچر یونین کے۔ مظفر گڑھ سے کتنا فاصلہ ہے مظفر گڑھ کا؟ 200 کلومیٹر مظفر گڑھ۔ ساتھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں۔ آپ بھائی جان کہاں سے ہیں؟ مظفر گڑھ کے۔ یہ سارے کے سارے ساتھی ہوں، لیٹے رہے۔ یہ مظفر گڑھ کے سارے ساتھی ہیں۔ گھوم کے ایک دفعہ پھر سے آج میزبانی جو ہے، کھانا جو ہے شفقت بھائی نے کھلایا۔ شفقت بھائی میسیج دے دیں بلکہ ہم اکٹھے آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان باجوہ صاحب نے جی آج ہم 8-10 دوستوں کو کھانا کھلایا۔ پہلی دفعہ اپنی گرہ سنس نے پیسے لگائے ہیں، کہتے ہیں آج حرام نہیں حلال کھانا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج باجوہ صاحب نے اپنی پاکٹ سے پیسے دیے۔ تو الحمدللہ سنگھیڑا صاحب، وڈیش صاحب، رانا احمد صاحب، فیاض گیلانی صاحب، تمام جو ہمارے قائدین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے قائدین کے ساتھ ہیں۔ باجوہ صاحب تو چل ہی رہے ہیں، اور تمام جو ہمارے بھائی بہنیں یہاں پر لیٹے ہیں، تمام سننے والے دیکھنے والوں سے بس یہ کی التجا ہے کہ صبح سکول چھوڑ کر، ہر حال میں دفتر چھوڑ کر 9 بجے اور 8 بجے پنڈال میں تشریف لائیں، تاکہ ہم لیو ان کیشمنٹ کا جو کالا قانون ہے اس کو کینسل کروانے میں کامیاب ہو سکیں۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ یہ ساتھی ادھر بیٹھے ہیں۔ سنگھیڑا صاحب شارٹ سا میسیج ٹو دی پوائنٹ جو ہے ساتھیوں کو دیں۔ جی چیئرمین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کے مشکور ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، اور باقی دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے، اور ان پر رحم کریں کہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، صرف لیو اینڈ کیشمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، پینشن، گریجویٹی اور باقی تمام معاملات جو سالانہ انکریمنٹ ہے اور جو باقی سروس کی جو بھی سہولیات ہیں وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ لیو اینڈ کیشمنٹ کو بچانا انتہائی ضروری ہے، باقیوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اگر یہی ہم نہ بچا سکے تو سمجھ لیں ہاتھ جھاڑ کر گھر کو جائیں گے۔ تو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ آج ہی تمام ملازمین جو ہیں جو اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بشیر وڈائی صاحب اس عمر میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، شفقت رسول صاحب جو کہ
चलना फिरना मुश्किल है, लेकिन जी चेयरमैन खाली जवेद संघेड़ा साहब थे, इन्होंने बात की बशीर वड़ैच साहब की। बशीर वड़ैच साहब थके हुए हैं, अभी चल के आए हैं, लेटे लेटे वड़ैच साहब। बशीर वड़ैच साहब वो लीडर है पंजाब टीचर यूनियन के। मैं तारुफ करा दूं कि जब बजट के दिन 9 जून को गिरफ्तार हुए थे तो बशीर वड़ैच साहब मेरे साथ थे, और क्योंकि मोबाइल मेरा जो है चोरी हुआ था तो बशीर वड़ैच साहब के मोबाइल से मैं लाइव गया था, और पहली दफ़ा लाइव गए थे इनके फ़ोन से। बशीर वड़ैच साहब मंडी बहाउद्दीन से पंजाब टीचर यूनियन अब्बासी ग्रुप के जो हैं सदर भी हैं। एक बड़ी तादाद के साथ इन्होंने आज पंडाल में आए, मैं इनके साथ था। बशीर वड़ैच साहब मैसेज दीजिए। तस्वीर फिट नहीं आ रही, बैठ जाओ, इंज नहीं हो सकता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन से अपील है कि वो अपना ज़िंदा होने का सबूत दें और लाहौर धरने में आए या फिर DCO ऑफिस धरने में जाए, एक जगह पर ज़रूर जाए। ये उनसे रिक्वेस्ट है। अगर इस दफ़ा उन्होंने कोई गलती या कोताही की तो फिर वो पछताएंगे। मेरी एक बार फिर उनसे अपील है कि सरकारी मुलाजमीन तमाम के तमाम लाहौर धरने में आए या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में DCO दफ्तर जो धरने मौजूद हैं होंगे उनमें शामिल हूँ। पंजाब के तमाम स्कूलों की तालाबंदी होगी इंशाल्लाह। मेरा कोई भी सदर सेक्रेटरी इसमें कोताही ना करे और तमाम के तमाम इजला इंशाल्लाह सुबह उनकी तस्वीरें बनाकर तालों की वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। बहुत शुक्रिया। राना अहमद हसन साहब नारोवाल से, और आप मेरी पहली वीडियो अगर देखें 8 जून की या 9 जून की, तो नारोवाल से ये सबसे पहले थे जो सूबे से पंजाब से फेडरल सेक्रेटेरिएट में जो है सबसे पहले अपने साथियों के साथ पहुंचे हुए थे। राना साहब एक मैसेज दें शॉर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरा मैसेज यही है कि पंजाब के तमाम मुलाजमीन अपने हक़ के लिए निकलें। ये वक्त ऐसा है, अगर इसमें आपने ज़रा भी कोताही की तो ये आपके गले पड़ जाएगा और आप पछताते रहेंगे सारी उम्र। तो हम इधर इस वक्त बैठे हुए हैं, बाजवा साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन ना करें, बल्कि जो पैगाम इधर से गया है ना वो इधर लाहौर पहुँचें, और जो लाहौर नहीं पहुँच सकते वो DC ऑफिस में हर हाल हाज़री दें और वो घरों को ना जाएं। ऐसे लोगों को ना अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता जो अपनी कौम से गद्दारी करे या कौम से तोहमत ना करे। जी राना साहब ये मैसेज दे रहे थे, कायदीन अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुके हैं, अब मुलाजमीन ने अपने हिस्से का काम करना है। मैं आ रहा हूँ गिलानी साहब की तरफ। इस वक्त इधर मौजूद भी हैं, तो बैसिया चीफ कोऑर्डिनेटर हमने पंचायत भी लगाई हुई है यहाँ पे। जो मसले मसाइल है हमारे कायदीन के, उनके भी जो है हमने मसले मसाइल जो है हल करने हैं। गिलानी साहब फयाज गिलानी साहब सदर PTU और शेखुपुरा से ताल्लुक़ है गिलानी साहब का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पंजाब भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा किराम अस्सलाम वालेकुम। रात के 2 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और आप देखें कि आप 2:40 हो चुके हैं और देखें आपकी क़यादत आपके साथ कितनी मुखलिस है कि इतनी रात गए तक ये सारे के सारी क़यादत जो है खालिद जवेद संघेड़ा साहब बैठे हैं, शफकर सूद साहब हैं, रहमान बाजवा साहब हमारा इंटरव्यू दे रहे हैं, मलिक अमजद साहब हैं, राना अहमद हसन साहब हैं, बशीर वड़ैच साहब हैं। ये सारे के सारे कायदीन अभी तक जाग रहे हैं और बैठे हैं, और जागने का मकसद सिर्फ ये है कि हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं सुबह के हवाले से कि आप तमाम ने अपने तलीमी इदारे भी बंद करने हैं, दफातरों में तालाबंदी करके आप जो नज़दीक तरीन हैं लाहौर के वो सारे के सारे दोस्त और भाई लाहौर पहुँचेंगे, और जो लाहौर से दूर हैं आप सब के सब दोस्त इकट्ठे होके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने इकट्ठे हो जाएं और वहाँ धरना दे दें, ताकि तमाम ज़िला के डिप्टी कमिश्नर भी ऊपर CM को रिपोर्ट कर सकें कि पूरा पंजाब बंद हो चुका है और ये हमारा जेन्युइन मसला है। और ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये खालिद जवेद संघेड़ा साहब का मसला नहीं, रहमान बाजवा का नहीं है, सीट पे बैठे हुए CO का मसला भी है, सीट पे बैठे हुए DO
SDO का मसला भी है और डिप्टी कमिश्नर का मसला भी है, कमिश्नर का मसला भी है, ताकि चीफ सेक्रेटरी का भी मसला है। तो मेरे ख्याल में तमाम ब्यूरोक्रेसी और तमाम इंतजामिया को इस हवाले से संजीदगी से गौर करना चाहिए कि उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मांगता है कि हमें लीव इन कैशमेंट की सूरत में और पेंशन की जो सूरत से जो एक मुनासिब अमाउंट मिलती है, जिससे हम अपने घर का जो मुस्तकबिल बच्चियों का है वो हम संवारते हैं, उनकी शादियाँ कर लेते हैं, घर के मकान बना लेते हैं, या दूसरी ज़रूरतें ज़िंदगी जो है वो हमने पूरी करनी होती है। तो ये हमारा सारा मुस्तकबिल है। अब अगर हमने अदराक ना किया, हमने फहम फरासत से काम ना लिया, तो याद रखें कि जिस तरह संघेड़ा साहब ने अपने बयान में ये कहा है कि अब अगर हम लीव इन कैशमेंट को ख़त्म ना करवा सके तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी तमाम जो मराहत है उस पर कट लग जाएगा। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, हालात की नज़ाकत को समझें। आपके पास ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर ये आप ना कर सके तो फिर समझिए आपने कुछ भी नहीं किया। तो कल हर सूरज जो है वो अपनी दफातर की तालाबंदी करें, स्कूलों में जो है वो अटेंडेंस लगा के आप बाहर निकलें, वहाँ हड़ताल की टिकटें लगा दें और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इकट्ठे हों और इस हुकूमत को वाज़े तौर पर ये पैगाम दें कि हम अपना हक लिए बगैर घरों को नहीं जाएंगे। उसके लिए हम चाहे जितनी देर भी हमें जो है बैठना पड़ा, तो आप गीगा कायदीन की ताकत बने, गीगा कायदीन के बाजू बने। इंशाल्लाह गीगा ने पहले भी आपको मायूस नहीं किया था और अल्हम्दुलिल्लाह गीगा आपको अब भी मायूस नहीं करेगा। गीगा पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे सिर्फ ये नहीं है कि जो कायदीन इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ कायदीन यहाँ पे कंबलों के नीचे भी हैं और हमने उनको जगाना जो है मुनासिब नहीं समझा। अमजद भाई जो है पंजाब एजुकेटर से, इन्होंने वाइब्रेटर जो है वो वाइब्रेशन पे लगाया हुआ है नोटिफिकेशन के, जैसे ही मैं लाइव हूँ उठे वो वाइब्रेट हुआ है, तो ये जो है ना कंबल के नीचे से निकल के आ गए। अमजद भाई एक मैसेज दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी से हैं अमजद साहब। बहुत शुक्रिया बाजा साहब आपका और दीगर तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम कायदीन ही मौजूद हैं। पैगाम तो बड़ा क्लियर है जी सब कायदीन की तरफ से कि कुछ हासिल करना है तो फिर हिम्मत करनी पड़ेगी। जैसा कि पहले पैगाम दे चुके हैं, हर इदारा हर सूरत बंद होना चाहिए और उसके लिए आपसे जो कुछ हो सकता है वो करें। तमाम स्कूल बंद करें, इसके अलावा हर दफ्तर बंद हो, तमाम हमारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं रोज़मर्रा की, डेंगी है, मार्किंग है, वो तमाम का मुकम्मल बाइकाट हो, फिर बात बनेगी। और इससे बात यह है कि ये प्रैक्टिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं रावलपिंडी में और मुख्तलिफ अजला में। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ना कोई डरने की ज़रूरत है ना और कुछ है। जब अपने हक के लिए लड़ना है तो फिर खुले दिल से लड़ना है, बड़ा से लड़ना क्लियर मैसेज दे दिए अमजद साहब ने कि अगर लड़ना है अपने हक के लिए तो फिर खुले तरीके से लड़ना है। और अगर एक मुलाजिम, एक लीडर की ये नाकामी नहीं होगी, धरने में मौजूद कायदीन की भी नाकामी है, इनके बच्चों का मुस्तकबिल, इनके वालिदैन की कोई बीमारियाँ खुदा न खास्ता, वो किसी बच्ची का जहेज़ या कुछ जो मुस्तकबिल के लिए सोचा हुआ था कि मैंने बाद में रिटायरमेंट पे कमरा वगैरह बनाना है, तो ये सारे मामलात जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं आप लोगों की सुस्ती की वजह से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िली नायब सदर पंजाब टीचर यूनियन मंडी बहाउद्दीन बात कर रहा हूँ। चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर के जहर भी करता है कभी कारे तरियाकी। मेरे अजीज़ मुलाजिम भाइयों, ये हमारी फैसला कुन जंग है, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हारने का। हमने इसको हर सूरत में जीतना है, लेकिन ये हम उसी वक्त जीत सकते हैं जब आप लोग ये नरम बिस्तर छोड़ेंगे, हमारी तरह यहाँ पे मैदान अमल में आएंगे। अगर आप लोग सुबह नहीं आते या इसको लाइट मोड में ले रहे हैं तो ये खुदारा ये सोचें कि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। ये पेंशन, ये नौकरी, ये लिव इन कैशमेंट, ये इतनी बड़ी तलवार है कि अगर आप लोग अब भी ये समझ रहे हैं कि हम लोग हमने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं और बिल्ली हमारे पास नहीं आ रही, तो खुदारा ये ज़हन से ये गलतफहमी निकाल दें। ये जंग का वक्त है, ये लड़ने का वक्त है, ये मैदान अमल में आकर अपने कायदीन के साथ जी बड़ा क्लियर कट मैसेज आपको मिल गया है साथियों की तरफ से। एक दफ़ा फिर से एक जायज़ा मैं दिलवा दूं आपको, हमारे सलामुद्दीन साहब साथियों का सलामुद्दीन भाई भी मौजूद है बहावलपुर से, भाई रह गए में हासिलपुर, बहावलपुर जो है दाईं साइड पे, हासिलपुर जो है वो लेफ्ट साइड पे, और बाबर अली साहब जो है वो मेरे साथ नारोवाल से आए। नारोवाल से बाबर अली साहब हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही।
इंशाल्लाह ताला जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं पेज को फॉलो भी कर लें, और ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं धरने के हवाले से शेयर करते रहें। फ़िल वक्त मौजूद हैं, जब तक हौसले बुलंद हैं, हिम्मत है, हौसले तो बुलंद रहेंगे, हिम्मत की बात है, और हिम्मत हौसले बुलंद इसी तरह से रहेंगे जब तक आप मुलाजमीन एक बड़ी तादाद में होंगे। और आप हौसला अफजाई आपकी यही है कि यहाँ पे लाहौर में और तमाम अज़ला के अंदर अपने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने कल आपको इकट्ठे होना है। ख्वाह किसी भी यूनियन या एसोसिएशन से आपका ताल्लुक़ है, कल आपको तमाम अज़ला के अंदर जो है वहाँ पे एहतजाज करवाना है, और लाहौर डिवीज़न के जितने भी नियरेस्ट साथी हैं आप लोगों ने यहाँ पे सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने पहुँचना। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। आपका भाई रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। बहुत शुक्रिया।